भाई कैसे हैं प्रभु। और ये हैं 360 शॉट्स के प्रभु एबी डिविलियर्स, बिकॉज नाउ पंजाब इज प्लेइंग बेंगलुरु एंड आई हैड टू आस्क अ कपल ऑफ क्वेश्चंस टू एबी डिविलियर्स, जिनको बाद में मैं हिंदी में ट्रांसलेट कर दूंगा, अगर हो सका नीचे कैप्शन चला दूंगा. सो एबी, as you would have found out that Punjab is playing your former team. So, and we always talk about Bengaluru team, the RCB, being a very emotional connect with fans they have. So, what is the real Bengaluru emotion that you have felt? Oh, just love. I think they absolutely love their players. The players love their fans. So there's a relationship, and that's always a healthy thing. Unfortunately, the trophy is not there yet. At least for the women, they did us a favour, and they got the city of Bengaluru a trophy this year. So hopefully the men will follow this year, and there will no better way to bounce back after that loss against CSK and win against Punjab. And you have played a lot of games against Punjab, and obviously Punjab is my team. And so, any special memories playing against Punjab you have? Going over there, playing in Mohali, the best wicket in the world, one of the best wickets in the world. Also Dharamshala, it's just an amazing wicket. So, good memories of a nice wicket, and a run scorers like heaven or paradise, you know. But they're a good team. I think they're not the best team in this year's tournament. I didn't rate them as making the knockouts, but you never know. They have enough world-class players, led by Shiki Dhawan. I think he's a fantastic leader, fantastic player. He's won so many games for them, but they're going to need the best of him this season to make it to the knockouts. And talking about your former team, RCB, the KGF, the Kohlis, the Glenn Maxwells and the Faf du Plessis, but you think the middle order is still a trouble, or you think all the boxes are ticked this time? I do think all the boxes are ticked, except for maybe the spin department. I don't think they have an X-factor spinner. They have a lot of good quality spinners. But sometimes you need someone like a Rashid Khan or Noor Ahmed, both of them at GT. And would you believe it, obviously, the last 2 seasons have done really well. So I always look at the spin quality and the bowling attack as a whole. I think RCB is lacking there a bit. But then again, at the Chinnaswamy, do you really need good spinners? No. You need maybe good fast bowlers and a good batting lineup. So maybe that was the thinking. I do think RCB is going to get very close this year, if not cross the line. So crossing fingers for them. Me too, because we all love Virat Kohli. We all really love RCB. And one final, very favorite question of mine: which batting school did you go to? I mean, all the 360 shots, where did you learn it from, man? I learned that through playing all kinds of ball sports: tennis, rugby, obviously cricket, golf, hockey, table tennis. More recently, paddle, that new game that's been making heat waves around the world. Just playing ball sports, keeping busy. I think that's the biggest secret of creating new shots and being creative out there with cricket. That's another connection, because I have done a lot of hockey commentary. I can see that power of drag flick that a drag flicker puts in the drag flick. And so much, thank you so much, AB, for talking to us and the viewers. And we'll keep disturbing you throughout the. Subscribe, notify, hit the bell notification, notify yourself. Otherwise, you're going to miss these kind of episodes. Come on. Please listen to him, please. अगर आपने एबी डिविलियर्स के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो पहले तो ये बताओ क्यों नहीं किया है. उठक बैठक लगाओ, मुर्गा बन जाओ. उसके बाद जाके सब्सक्राइब कीजिए. भैया जबरदस्त कंटेंट देते हैं. विराट कोहली क्यों नहीं खेल रहे, सबसे पहले इन्होंने ही बताया था. भाई डिविलियर्स साहब की बात आपने सुन ली है. अब 2-4 मेरी बातें भी सुन लीजिए, कहानियां भी सुन लीजिए. आरसीबी, बेंगलुरु और पंजाब का मैच है. मैच की और भी बड़ी रोमांचक कहानियां हैं डिविलियर्स ने जो बताई, उनके अतिरिक्त. हाँ, उनकी एक बात जरूर मानिएगा, लाइक, शेयर, घंटी का बटन, सब्सक्राइब जरूर करते रहिएगा. आगे लोगों को बता दीजिए कि इस चैनल पे अब एबी डिविलियर्स समेत और बड़े बड़े दिग्गज क्रिकेटर्स भी आपसे बात करने आएंगे. तो इस मैच की और कहानियां क्या है? पहली कहानी ये है, बड़ी रोचक सी, कि दोनों टीम्स ने अपना नाम बदला है. आरसीबी रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर थे, अब वो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु हो गए हैं. पंजाब जो पहले किंग्स 11 पंजाब थी, वो अब पंजाब किंग्स हो गई है. तो एक छोटा सा प्यारा सा टशन दोनों टीम्स ने लगाया है. नंबर 2, दोनों टीमों को अब तक ट्रॉफी नहीं मिली है. हाय, क्यों नहीं मिली पंजाब वालियों? मतलब दोनों टीम्स अभी तक तड़प रही हैं, फाइनल खेली हैं, ट्रॉफी से अभी वंचित हैं. तीसरी कहानी, बेंगलुरु इस सीजन में अपने घर पहला मैच खेल रही है. पहला मैच आप खेलने चेन्नई गए थे, वहां 8-10 गेंदें शेष रहते, हार गए थे, तो आपके लिए चिंता की बात है. अब घर पे आए हैं. वैसे उनके घर जाने का मुझे मौका मिला था महिलाओं की लीग में. भाई मज़ा आ गया था. वहाँ जो माहौल बनता है, खैर किसी भी स्टेडियम में माहौल ज़बरदस्त बनता है, वहाँ का माहौल भाई बिल्कुल अलग था. तो अपने घर का फ़ायदा क्या बेंगलुरु की टीम उठा पाएगी?
चौथी कहानी ये है जो शाश्वत है, बेंगलुरु की टीम में स्पिनर्स की समस्या। हालांकि कोई बहुत दिग्गज स्पिनर पंजाब की टीम में भी नहीं है, लेकिन करण शर्मा और उनके साथ जो आप बाकी स्पिनर्स के साथ आगे जाने की ट्राई कर रहे हैं, स्पिन अटैक उनका उतना अच्छा नहीं लग रहा जितना आप राजस्थान का मानते हैं या जितना आप दिल्ली का भी मान सकते हैं। तो स्पिनर्स की समस्या वहां पे रहेगी। बाकी जैसा एबी भाई ने कहा कि स्पिनर्स की जरूरत पड़ती नहीं है चिन्नास्वामी स्टेडियम में। पांचवी कहानी ये है कि रजत पाटीदार जो पिछले मैच में नहीं चले, जो टेस्ट सीरीज में नहीं चले, क्या वो इतना सारा प्रेशर कुकर जो उनके सिर पे बंधा हुआ है, उस प्रेशर कुकर की सीटी निकाल के स्टीम भाप बाहर निकाल पाएंगे, क्या बेहतर कर पाएंगे? हमारा दिल कहता है ज़रूर करके दिखाएं, क्योंकि 2 सीज़न पहले बड़ा अच्छा खेले थे और बड़े कमाल के बैट्समैन तो है यही हैं। पंजाब की अब कहानियों की बात कर लेता हूं। पंजाब के टॉप 3 पिछले मैच में नहीं चले। आप शिखर धवन के साथ आपने जॉनी बेयरस्टो को उतारा था, उन्होंने कहा जॉनी जॉनी, वो बोले यस पापा, बोले आउट हो जाओ, यस पापा। नहीं करना है, ओपनर्स का चलना ज़रूरी है। प्रभ सिमरन बाद में आए थे, वो भी नहीं चले थे। टॉप 3 नहीं चलेंगे तो फिर बॉटम पे प्रेशर आता है। ठीक है, बाद में हमारे साबका सरपंच एक्स कैप्टन चले, लियम लिविंगस्टोन चले, उन्होंने मैच जिताया, पर टॉप ऑर्डर चले, इंडियन बैटर्स चलें, ये बड़ा ज़रूरी होता है। मैक्सवेल, ओहो हो, मैक्सवेल जब चलता है तो बॉलर्स को अनवेल कर देता है, और मैक्सवेल पंजाब से खेल चुके हैं, और किस किस को वो सीज़न याद है जो पंजाब के साथ उनका सबसे बेहतरीन सीज़न रहा था? बताइए नीचे कमेंट्स में क्या किया था मैक्सवेल ने उस सीज़न में। और अगली बात यह है, आखिरी कहानी जो मैं निकाल के लाया हूं अपने पिटारे से, दोनों टीम्स के कैप्टन नियमित तौर पे कंपेटिटिव क्रिकेट नहीं खेलते हैं। फाफडू प्लेसी लगातार क्रिकेट नहीं खेलते हैं, इंटरनेशनल क्रिकेट छोड़ चुके हैं, सिर्फ फ्रेंचाइजी क्रिकेट खेलते हैं। शिखर धवन अब पिछले कुछ टाइम से नेशनल टीम के सिनारियो में नहीं है, वो बहुत कंपेटिटिव क्रिकेट नहीं खेले। खाली एक डीवाई पाटिल प्रतियोगिता होती है यहाँ इस भारतीय T20 लीग से पहले, वहाँ वो मुंबई में खेले थे। तो दोनों कैप्टन रेगुलर क्रिकेट नहीं खेल रहे। ये थी इस मैच की कुछ नन्ही मुन्नी प्यारी प्यारी मीठी मीठी कहानियाँ। बताइए आपको सबसे अच्छी कहानी क्या लगी? AB डिविलियर्स साहब की कौन सी बात आपको ज़्यादा अच्छी लगी और आप उनसे क्या पूछना चाहेंगे? मैं कोशिश करूंगा दोबारा से उनसे दरख्वास्त करूं, अगर वो बात करने को तैयार हैं, अगर उनके पास समय है, बात तो करने को तैयार है, मेनली बात समय की है। नीचे कमेंट्स आपके लिए खुले हैं, अपनी कहानियां नीचे बताइए। कहानीकार को दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद।